सबशेल एंड orbital. ठीक है, so let us discuss what is shell, what is subshell, and what is orbital. So class, shell concept was given by scientist Bohr. So according to Bohr, every atom consists of central nucleus. The atom consists of central nucleus. Electrons are revolving around nucleus in circular path, right? So each path where electrons are revolving without losing or gaining energy, that each circular path is called as the shell, right? Yes. Starting Yes. from nucleus, the name was given. The first shell was given name K, then L, L, M, M. N, N, O, etc. P, Right? O, P. etc. Good. Yes. But class, now instead of using one K, L, M, N, we use term 1, 2, 3, 4, and so on, starting from the nucleus. First shell, second shell, third shell, fourth shell, and so on. So this was concept of shell. So class, shell is represented by symbol small n. So if I say n is equal to 1, matlab First right? shell. Shell. From the First nucleus. shell. Very good. If I say n equal to second shell, Second shell. n equal to 3, third shell, Third n equal to shell. 4, Third shell. fourth shell. Okay, Fourth and so shell. on, right? And fifth shell. Fifth shell. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, etc. So these are the shells. The nucleus, around nucleus we have shells. First shell, second shell, third shell, fourth shell, etc. हाँ. Plus shell के अंदर सब shell होता है. तो क्लास याद रखो, किसी टीचर ने आपको शायद बताया भी रहेगा, because this is very important concept to learn many concepts in chemistry, for especially organic chemistry. Plus first shell has only one subshell. We call it subshell. Anybody heard about it? First shell has S subshell. Very good. S सुना आपने? subshell. Yes. Okay. Yes. Yes. What is Yes. capacity of S subshell? कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं S subshell में? 2. 2. 2 electron. Very good. Second shell has S subshell has S. P. S S. subshell SP. S में 2 electron and P में maximum 6 electron, right? 6 electron. So total capacity of second shell is 8 electron, बराबर ना? 8. 8. 8. Okay. 8 electron. Third shell has S subshell, P subshell and D P subshell. subshell. D subshell. good. कौन सी चैप्टर में सीखा आपने? Periodic table. Periodic table. Periodic Periodic table. table. पीरियड हो गया आपका periodic table? Modern periodic table. नहीं Yes. चल रहा है. नहीं चालू है. थोड़ा चालू है सर. इसमें 2. So without concept of shell subshell is very difficult to understand periodic table. So try to understand this concept, very important. ठीक है? S subshell has 2 electron maximum, P subshell has 6 electron, D subshell maximum 10. 10 electron. Total electron possible are 18. 18. very good. हाँ. Plus fourth shell has S, SPD. P, D, SPD. F. P contains 6, D contains 10, 10. F contains F. 14. 32. total 32. 32. 32. Okay, class fifth shell has S, P, D, F. F. F and G. ठीक है क्लास पर याद रखो, इलेक्ट्रॉन कभी G में एंट्री करते ही नहीं. So G is there, but electron never enter in G. So G is only theoretical. We never use G for practical purpose. तो G भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन G में एंट्री करते नहीं, याद रखो. So it is, आपको मालूम होना चाहिए, फिफ्थ शेल में G भी होता है. Okay? So S subshell, P subshell. सर G लास्ट शेल है. नहीं उसके आगे देखो, सिक्स शेल में और एक होगा, 7 में और एक होगा, ऐसा वो सब थियोरेटिकल है. देखो ये सब शेल्स है ना. और हम लोग जो इलेक्ट्रॉन में when we discuss next lecture, तो आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ F तक ही भर जाते हैं, मतलब G अगर में इलेक्ट्रॉन भरते ही नहीं. वो शेल सिर्फ थियोरेटिकल इंपॉर्टेंस है, उनका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं है. विल डिस्कस टुडे, सब देखते हैं, टाइम मिला तो. ओके सर. ठीक है, आपको SPD तक ही याद रखना है. तो S, P, D and F. ठीक है. तो बस शेल में क्या होता है? सबशेल. हाँ, शेल में क्या होता है? सबशेल होता है, राइट? Yes. तो फर्स्ट शेल में कितना सबशेल्स है? 2. एक ही सबशेल है. क्या नाम है सबशेल का? One. सबशेल. Yes. नहीं सबशेल कौन सा है? फर्स्ट शेल में एस सबशेल है. S. सेकंड शेल में एस एंड पी है. P. ओके क्लास, अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछता, सेकंड शेल में डी होता है क्या? आपका आंसर क्या होगा?
No. Oh, no. D start from third shell, right? Yes. Yes. तो थर्ड में S P and D. हाँ क्लास क्या थर्ड में F होता है? No. क्या थर्ड शell में F सबशेल होता है? नहीं. No. No. सबशेल start from fourth shell. Fourth shell. और फोर्थ शell ऑनवर्ड सब क्या SPDF सब होते हैं, चारों होते हैं. SP होता है, PP होता है, DB होता है, AP होता है. आफ्टर फोर्थ, ठीक है. पर फर्स्ट के पास सिर्फ S होता है, सेकंड के पास S and P होता है, थर्ड में SP and D. होता है, फोर्थ शेल में SPD and SPDF. ठीक है. बस अभी सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखो, अगर आपको सिर्फ रट्टा मारना है तो मैं आपको, मेरे लिए बहुत इजी है, पर आई वांट टू मेक यू विजुअलाइज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. आपको ऑर्बिटल समझाना चाहता हूं मैं एक्चुअली कैसे होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑर्बिटल. तो क्लास सबशेल में ऑर्बिटल होता है. तो क्लास मैं आपको बताता हूँ, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, and we call orbital as the s orbital. क्या बोला मैंने? s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल. S orbital. तो उसका नाम क्या होता है? s orbital. S orbital. क्या S बोलोगे? orbital. आप ये भी बोल सकते हैं कि s सबशेल को s orbital बोलते हैं क्योंकि एक ही है वो, राइट? Yes. हम लोग s सबशेल को s orbital बोल सकते हैं बिकॉज़ s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो we call it s orbital. Now what is the meaning of s orbital? Let us understand meaning of s orbital. क्लास ठीक है? Very careful now. तो क्लास समझो, हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है. तो क्लास अभी मैं ड्रॉ करता हूँ, ये सेंटर में न्यूक्लियस है और मैं ड्रॉ करता हूँ एक स्फीयर. हाँ, प्लस मैंने बात किया फर्स्ट शेल. प्लस n इक्वल टू 1. व्हाट इज 1? n इक्वल टू मतलब First shell. फर्स्ट शेल. First shell. प्लस फर्स्ट शेल में कितना सबशेल है? एक. सबशेल है. एक. क्या नाम है सबशेल का? S सबशेल. S subshell. S सबशेल. और उसमें कितने ऑर्बिटल्स है? एक. एक ही ऑर्बिटल. S. क्या नाम है ऑर्बिटल का? S S orbital. Better. हाँ, S S orbital. S ऑर्बिटल, ठीक है. S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल कौन सा? S ऑर्बिटल, बराबर ना? हाँ. तो प्लस S सबशेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल कौन सा? S ऑर्बिटल. ठीक है. तो क्लास S ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं हम लोग. तो क्लास ये न्यूक्लियस हमने ड्रॉ किया है नीचे. ओके. तो क्लास जस्ट इमेजिन आपके पास एक टेनिस बॉल है. सबने टेनिस बॉल देखा है, अंदर से खाली होता है. Yes. Yes. तो क्लास ये जो ड्रॉ किया, हाँ ये जो ड्रॉ किया ना वो सर्कल नहीं, वो क्या है? स्फीयर है. अभी मैं इसके ऊपर स्फीयर नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा. जैसे इमेजिन मैंने जो ड्रॉ किया है, तो मैं वापस ड्रॉ करता हूँ एक बार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप. तो क्लास ये मेरे पास न्यूक्लियस है, उसके अराउंड मैं एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ. स्फीयर प्लस ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है. हाँ. तो लेट अस इमेजिन, हम लोग इमेजिन करते हैं. प्लस समझो हमारे पास एक टेनिस बॉल है, बराबर है? ओके. वो स्फीयर मतलब टेनिस बॉल है, उसके सेंटर में कौन है? न्यूक्लियस, इमेजिनरी न्यूक्लियस, राइट? और उसके अंदर हम लोगों ने हमने छोड़ दिया 2 हनी बीज, मधुमक्खियां छोड़ दी, राइट? उस स्फीयर के अंदर. प्लस वो 2 हनी बीज, मधुमक्खियां उस स्फीयर के अंदर कहाँ पे हो सकती है? एक ही चीज रखो, वो न्यूक्लियस Anywhere. मैं आपको इमेजिन करवाता हूँ. वो न्यूक्लियस को टच करेंगे तो मर जाएगी. दे विल नॉट, हनी बीज विल नॉट टच द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस के बहुत पास जा सकती है पर न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकती, राइट? Yes. तो क्लास हनी बीज कहाँ पे हो सकती है? कहाँ पे हो सकती है? इधर भी हो सकती है, राइट? Around nucleus. Yes. Anywhere. अराउंड न्यूक्लियस. हाँ क्लास, ये बाउंड्री को छोड़ के बाहर नहीं जा सकती, ठीक है? Yes. Yes. हाँ, पर न्यूक्लियस को टच नहीं करेंगे. और अंदर जो भी रीजन है, क्लास व्हाट इज शेप ऑफ द रीजन इनसाइड? Spherical. 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 तो उस स्फेरिकल रीजन में वो 2 मधुमक्खियां किधर भी घूम सकती है, उनकी मर्जी. क्लास यहाँ पे कितनी मधुमक्खियां हैं? 2. 2 ही है. क्लास इतने सारे नहीं ड्रॉ किया, 2 ही है, वो किधर भी घूम रही है अपनी मर्जी से, राइट? Yes. तो क्लास Yes. this is 3-dimensional region around the nucleus, right? Yes. This 3-dimensional region around the nucleus. Nucleus. The 2 electrons can move. It's called as the s orbital. क्या कहते हैं उसको? S orbital. तो क्लास s orbital कौन से शेल का है? फर्स्ट शेल का, राइट? First shell. Yes. इसलिए मैं इसका नाम दूंगा 1s. क्लास 1s का मतलब क्या? First orbital. First orbital. फर्स्ट शेल का s orbital. फर्स्ट शेल का s orbital, ठीक है? S orbital. Yes. फर्स्ट शेल का s orbital. What is shape of the s orbital? Spherical. Spherical. हाँ.
Class, how do you define orbital then? How do you define orbital? Orbital is a three-dimensional, right? Region around a Nucleus. 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 where there is maximum probability. Class, what is probability means? Possibility. Possibilities. Of finding क्या इलेक्ट्रॉन. Electron. ठीक है. तो क्लास अगर मैं बोलता हूँ 1s ऑर्बिटल मतलब क्या, तो न्यूक्लियस के अराउंड कैसा रीजन है? स्फेरिकल रीजन है, राइट? Yes. उस स्फेरिकल रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2. दो. वो दो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल रीजन में कहाँ पे होंगे? Anywhere. Anywhere around nucleus. Around the nucleus. न्यूक्लियस को टच नहीं करेंगे. न्यूक्लियस को छोड़ के देखो, मैं बताता हूँ आपको, बाउंड्री ड्रॉ करता हूँ. ये बाउंड्री है, ये न्यूक्लियस है. ये न्यूक्लियस को टच नहीं करेंगे. नंबर 1. और इस बाउंड्री के बाहर नहीं अंदर. जाएंगे, राइट? बाउंड्री के बाहर नहीं जाएंगे. तो जो अंदर जो रीजन है, व्हाट इज शेप ऑफ द रीजन? स्फेरिकल. Spherical. तो दैट रीजन इज कॉल्ड एज व्हाट? एस ऑर्बिटल. S orbital. और क्लास ये कौन सा शेल का एस ऑर्बिटल है? फर्स्ट शेल का. इसका नाम First क्या हो गया? So, 1s. इसका नाम क्या हो गया? 1s ऑर्बिटल. 1s. प्लस अगर हम लोग चाहे ना, न्यूक्लियस को हम लोग क्या दिखा सकते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस. काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे इजी पड़ेगा हम लोग को ड्रॉ करने के लिए. वेट अ मिनट, लेट मी टेक न्यू पेज. हाँ, थैंक यू. चलो, हमने क्या बोला था? ये न्यूक्लियस है हमारे पास. ओके, अराउंड न्यूक्लियस हमारे पास कौन सा रीजन है? सर्कल या स्फीयर है? Spherical. Spherical. और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उस रीजन में? कहीं भी. कोई भी. Anywhere Between around nucleus and the orbital. Anywhere in the nucleus and that spherical Yes, boundary. spherical boundaries. Boundary. कितने इलेक्ट्रॉन? 2. दो. मैक्सिमम 2. एक भी हो सकता है पर मैक्सिमम 2. 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट? Yes. I call it as a which orbital? 1s orbital. 1s orbital. 1s क्लास. orbital. हाँ क्लास, शेल कौन सा था? First Yes. Yes. तो उसमें कितना सबशेल है? एक ही सबशेल है. एक ही सबशेल है ना? एस सबशेल बराबर. Yes. Yes. और क्लास एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है. नाम क्या होगा उसका? S orbital. ऑर्बिटल. या इसको और अच्छे से बोलेंगे तुम लोग क्या बोलेंगे? 1s. 1s. बिकॉज वो ऑर्बिटल फर्स्ट शेल का एस First ऑर्बिटल, राइट? cell में. Yes. Yeah. क्लास अभी हम लोग क्या करते हैं? अराउंड न्यूक्लियस हम लोग ड्रॉ करते हैं. इसका जरूरत नहीं एक्चुअली, फिर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड Z axis. एक्सिस. ठीक है. Yes. अब आपको ना, अभी हम लोग जाते हैं सेकंड शेल में. क्लास सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4. 4. इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं सेकंड शेल में? 8. 8 होते हैं. 8. ठीक है. आपको पता फॉर्मूला, आपको शायद फॉर्मूला लगा, आपको फॉर्मूला मालूम होगा. तो क्लास n इक्वल टू, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था 2 into n 2 स्क्वायर. into n square. हां, तो क्लास तो 2 into n मतलब सेकंड शेल, तो 2 स्क्वायर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8. 8. याद रखो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एस सबशेल में और 6 इलेक्ट्रॉन. 6 होते हैं P subshell. पी सबशेल में. ठीक है. 2 होते हैं एस सबशेल में और 6 होते हैं पी सबशेल में. आउट ऑफ 8, 2 आर इन एस सबशेल एंड 6 आर इन पी सबशेल. ठीक है. हां, तो क्लास अभी सेकंड शेल में भी एस सबशेल, राइट? मुझे तो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? S में एक है. एक ही ऑर्बिटल होता है, राइट? तो उसका उसका नाम क्या होगा? 1s या 2s? 1s. 2s. 1s या 2s? 2s. 2s. क्लास 2s क्यों? क्योंकि वो Second orbit का है. सेकंड शेल. केस का है. हाँ, तो क्लास उसका शेप अभी अपने बुक में नहीं समझेगा आपको उसका शेप. अभी यहाँ पे जानना पड़ेगा उसका शेप क्या होता है. तो क्लास ये टेनिस बॉल था. Yes. Yes. हाँ, अराउंड अ न्यूक्लियस. क्लास बहुत से कंसेप्ट देखेंगे हम लोग जेडब्ल्यू के लिए इसमें नेक्स्ट लेक्चर में. हाँ, तो क्लास अभी ये टेनिस बॉल है. क्लास अभी मैं क्या करूंगा? एक फुटबॉल लूंगा.
क्लास फुटबॉल लिया, ठीक है हम लोगों ने एक। क्लास सर्कल या स्फीयर है? Sphere. हाँ ठीक है। हाँ क्लास समझो इस फुटबॉल का रेडियस है 9, से फॉर एग्जांपल कितना 9 है, ये तो यूनिट में 9 है। तो ये मैंने जो जो फुटबॉल है उसका रेडियस कितना 9 है, लिया मैंने रेडियस 9। Yes. प्लस में और एक फुटबॉल लूंगा जिसका रेडियस कितना है समझो 12 है। 12. इमेजिन आपको दोनों भी स्फीयर। हाँ. Yes. प्लस तो ये जो समय कलर चेंज करता बेटर रहेगा। तो पहला जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया कौन से कलर में है वो? पर्पल कलर में, राइट? Purple. हाँ जिसका रेडियस कितना 9 है। अभी मैं दूसरा स्फीयर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका रेडियस कितना है 12. 12. फ्रॉम द 12. न्यूक्लियस, राइट? Yes. हाँ तो क्लास माय क्वेश्चन इज दो स्फीयर, ये बड़ा छोटा वाला स्फीयर और ये बड़ा वाला स्फीयर, ठीक है, उनके इसमें जो जगह होगा उसका शेप क्या होगा? Spherical. Spherical. स्फेरिकल। पक्का? Yeah. देखो क्लास ये बोर्ड पेपर के ऊपर दिखाना पॉसिबल नहीं है पर आपको इमेजिन हो रहा है ना, ये पर्पल वाला भी स्फीयर है और ब्लू Yes. वाला भी। Spherical. Sphere. हाँ तो उनके बीच में जो जगह होगा वो शेप क्या होगा? स्फेरिकल होगा। Spherical. Spherical. हाँ तो क्लास उस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कहाँ पे? दो। उनकी मर्जी, किधर भी घूम सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, किधर भी, वो उस रीजन में किधर भी होंगे, राइट? Yes. हाँ क्लास तो क्लास इस रीजन स्फेरिकल शेप रीजन जहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 2. 2. कौन से शेल के? S. 1S. सेकेंड शेल के 2s ना बच्चे लोग, 1s या 2s? 2s. 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 प्लस 2s क्यों? Second क्योंकि subshell. Shell. में S orbital. तो प्लस फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2 2. ही होते हैं ना मैक्सिमम। हाँ तो दोनों के दोनों Yes. कहाँ पे, दोनों के दोनों कहाँ पे? 1s में, बराबर है? Yes. अभी फर्स्ट शेल का काम खत्म, अभी हम लोग कहाँ पे गए? Second. वेरी गुड। प्लस सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। Yes. हाँ तो क्लास हम लोग 8 में से अभी बात करें पहले 2 इलेक्ट्रॉन की, राइट? Yes. कहाँ पे प्रेजेंट है वो? स्फेरिकल शेप रीजन है, बराबर? 2s. स्फेरिकल शेप रीजन। तो क्लास क्या बोलूंगा इस रीजन को मैं? 2s बोलूंगा। दिस इज 2s. फॉर 2s ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है? 2s 2s. ऑर्बिटल। Orbital. हाँ वेरी गुड। क्लास अभी कितने बचे अभी? इलेक्ट्रॉन और 6, 6. ठीक है? तो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? p सबशेल में, राइट? Yes. हाँ तो क्लास यहाँ पे ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। वापस बोलो मैंने क्या बोला? p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। 3. s सबशेल में कितने होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है। कौन सा? s ऑर्बिटल, राइट? Orbital. Yes. और p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। 3. px py pz. हाँ क्लास में उनको नाम दूंगा मैं 2px 2py एंड py. 2pz। हाँ क्लास PZ. क्यों 2p? why 2? Second Second subshell. Second shell. Okay, but second shell, Second 2px shell. 2py and 2pz। हाँ class, so let us see 2pz. how Second 2px shell. 2py and 2pz। But just a second ना, let me check the internet connection because electricity is gone. Okay. Hey, just a minute. Okay. What is the phone? This is the side. Which one? Take and go. Take and go. ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। हाँ हाँ तो क्लास अभी px py and pz उनका शेप कैसा था देखते हैं हम लोग। तो क्लास लेट अस सी शेप ऑफ px ऑर्बिटल, शेप ऑफ py ऑर्बिटल एंड शेप ऑफ pz ऑर्बिटल। तो लेट अस सी। तो क्लास अगर हम लोग बलून लेंगे उसमें हवा भरेंगे, राइट? Yes. बलून कुछ ऐसा दिखेगा। Yes. Yes. तो क्लास हवा वो, Shape. हाँ तो क्लास जो बलून हवा भरा हुआ है वो 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल है? 3 dimensional. गुड। हाँ क्लास में और एक बलून लूंगा उसमें हवा भरूंगा
और उसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा, राइट? दोनों ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे जो सेंटर है ना वो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये जो दो बलून है हवा भर के उसके अंदर जगह है, राइट? इट इज टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, Three. थ्री डायमेंशनल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकते रह सकते हैं? इलेक्ट्रॉन उन दो बलून में किधर भी रह सकते हैं, उनके Anywhere. एनीवेयर, Yes. एनीवेयर इन दैट बलून, ठीक है? हाँ, Yes. प्लस वी कॉल दिस शेप एज, Yes. हम लोग शेप को डम्बल शेप बोलते हैं। कौन सा शेप बोलते हैं? Dumbbell shape. Shape. जो बच्चे लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको मालूम है डम्बल क्या होता है, तो एक्चुअली शेप उसके साथ होता नहीं, पर बोलते हैं डम्बल शेप। क्या बोलते हैं इसको? डम्बल शेप। Dumbbell. तो अगर Dumbbell, आपको डम्बल dumbbell. शेप इमेजिन करना है, कैसे इमेजिन करोगे डम्बल शेप? टेक बलून, फिल विद द एयर, दो बलून में हवा भर दो आप और उनको जॉइन कर दो, बीच में नॉट बांध दो, तो जहाँ पे नॉट बांधा वहाँ पे न्यूक्लियस होगा, राइट? Yes. क्या होगा वो शेप? डम्बल शेप। तो Dumbbell shape. Double shape. तो आप कैसे ऐसे कितने ऑर्बिटल आपके पास? ऐसे 3 है, राइट? Yes. तो क्लास एक ऑर्बिटल है। तो क्लास मैं यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा सकता हूँ आपको मैं ये, और यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, तो मैं इसको सेपरेट दिखाता हूँ एंड एट द एंड आई विल शो द वीडियो इफ पॉसिबल। So or I'll send the video, you just see. So class, this is y-axis. Yes. Yes. This is origin here. Yes. This is y-axis. This is origin here. Okay. This is x-axis. This is origin here. Okay, and this is z. Class z front and back. So it is not possible for me to show it on the paper. So just imagine z-axis, angle 45 degrees Celsius. So x-axis, y-axis, and z-axis are perpendicular to each other, right? Yes. Yes. तो क्लास यहाँ पे मुझे पॉसिबल नहीं है यहाँ पे z एक्सिस को यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दिखाना, तो जस्ट इमेजिन इसका एक पार्ट प्लेन के आगे, एक पार्ट प्लेन के पीछे. पीछे वाला ना। हाँ, दिस z एक्सिस। हाँ, तो क्लास एक बलून, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। ये आपका बलून है, ऑन विच एक्सिस? X x एक्सिस। Exactly. क्लास उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? एनीबॉडी? उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? Two. वेरी गुड। कोई भी ऑर्बिटल दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो क्लास 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इस बलून विच इज ऑन विच एक्सिस? X. x एक्सिस। क्लास कहाँ पे जो मैं डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, उस एरिया में किधर भी, एनीवेयर, सिर्फ वो कहाँ पे नहीं रहेंगे? सेंटर में जो न्यूक्लियस है ना, Around the nucleus. न्यूक्लियस में नहीं जा सकते, अदरवाइज दे कैन गो एनीवेयर। तो क्लास आई कॉल दिस ऑर्बिटल एज व्हाट? P. 2px. Yes. px ऑर्बिटल। हाँ, 2px, नो डाउट, px ऑर्बिटल। क्लास somebody define px ऑर्बिटल को, डिफाइन करेगा px ऑर्बिटल को? कोई डिफाइन करना चाहेगा? हाउ वी डिफाइन px ऑर्बिटल? एनीबॉडी? चलो मैं आपको हेल्प करूं, स्टार्टिंग आप आगे बढ़ोगे। तो px ऑर्बिटल इज डम्बल शेप रीजन अराउंड द Nucleus. 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 on X-axis. where there is a Where problem, there is where there maximum probability of finding finding electron. कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा? Two Two electrons. electrons. वेरी गुड, वेरी गुड, समझा आपको? दैट इज कॉल्ड द px Yeah. ऑर्बिटल। Right, sir? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, प्लस देन this is again dumbbell shape region on which axis? Y-axis. Y-axis. You can have maximum Two electrons. Two electrons electrons. where in that region except not on the nucleus. So electron nucleus में नहीं होते, otherwise they can be anywhere. 2 electron. Okay, I call this orbital as what? Which orbital? PX orbital. PY orbital. Sorry, PY. Why py? It is on. Y-axis. Yes. So class, if I ask you define py orbital, what do you answer? Py orbital. It is a Dumbbell shape Dumbbell Shape shaped region around the nucleus. around The nucleus. Around It lies on where Y. electrons can be found. on which axis? Y-axis. y-axis. Where there is a maximum probability of finding. electron. Very good, very good. Class, next is pz. PZ. So this is pz, right?
So class Z. So how many electrons? 2 electrons can be anywhere. Electrons. Our class all have. देखो, I'm drawing with the help of that electronic pencil, so it is not possible to show me all are equal shape. Remember, all have exactly same shape. हाँ, मतलब सिर्फ उनका डायरेक्शन चेंज अलग होता है, तो कोई मोटा छोटा बड़ा नहीं होता. All are exactly identical. Except what is different? Direction is different. So this is which orbital? Z orbital. Z orbit. A three-dimensional region around the nucleus on z-axis where there's a maximum probability of finding electron, right? So if I take x, y, and z-axis together, if I take x and y axis together, if I show x, I'm very sorry, this as if I show ordinate x-axis, y-axis, and Z-axis. Z axis. ठीक है. तो class, this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. So class, this one is what? This one is px orbital. Px orbital. Yes. This is, everyone agree or not? Yes. On x-axis, Yes. this is orbital on y-axis, and this is pz orbital on z-axis. Z Right? Z axis. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है, इसलिए हमने इनको सेपरेटली देखा है. थ्री डायमेंशनल देखा, मतलब इट इज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड. सो दिस इज px ऑर्बिटल, बराबर है. दिस इज py ऑर्बिटल, बराबर है. स्टार्ट स्टूडेंट्स. Yes. And this is PZ orbital. orbital on x-axis, on y-axis, and z-axis. Yes. What is capacity of px orbital and px orbital can be 2, right? 2. p orbital 2 and p orbital 2. Two. Total electrons कितने हो गए? 6. तो p 6. sub, हाँ, तो p subshell has capacity of 6 electrons. 6. Out of 6, 2 are in px orbital, 2 are in p orbital, and 2 are in. Z orbital. हाँ. तो क्लास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सेकंड शेल में? 8. तो 8 में से 2 कहाँ पे है? S. Orbital. s ऑर्बिटल में, राइट? हाँ. Yes. और 6 कहाँ पे है? एक p सबशेल में, p सबशेल में 6, तो उसमें से 2 px ऑर्बिटल में, 2 py ऑर्बिटल में, और 2 pz ऑर्बिटल PZ में. orbital में. क्या आप तक क्लियर है आपको? Yes. क्लास नाउ गोइंग, नाउ एक चीज और आपको क्लास, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो क्लास आपको मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ. आपको 1s, ओके, लेट मी राइट द नेम. क्लास दिस इज 1s ऑर्बिटल, दिस इज 1s ऑर्बिटल. Class this is 1s orbital, right? And this which orbital? 2s orbital, right? Yes. Yes. Class this is 1s and 2s orbital. Can you see there is empty space? Yes. 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 Class तो उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते between 1s and 2s, right? Yes. Yes. If I talk with respect to 1s and 2s, class JEE वाले लोग याद रखो, important है. So between 1s and 2s, if you try to find electron between 1s and 2s, you can't find electron between 1s and 2s. Yes. So class that region, class what is shape of that region? Spherical. Circle, sphere, spherical. Or you can say three-dimensional region. So class that three-dimensional region where electron cannot be found is called as a spherical node. क्या बोलते हैं हम उसको? Spherical Node. And for your competitive exam, though between two orbital there is some region where electrons cannot be found. We call that region as what? Spherical node. Node. ठीक है, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए बिठा देता हूँ बिकॉज मुझे आगे और ड्रॉ करना. हाँ क्लास, लेट अस गो इन द थर्ड, लेट अस गो इन नाउ थर्ड शेल. क्लास थर्ड शेल में बोलो क्या क्या होता है? SPD. SPD. तो क्लास इफ आई गो इन थर्ड शेल, n is equal to 3. So third shell has S subshell, and class S subshell has only one orbital. Which orbital? S orbital. S orbital. और वो कहलाएगा
yes. क्यों? क्योंकि वो थर्ड शेल का है। थर्ड Shell. शेल। थर्ड शेल में पी सब होगा। Yes. यस। इसमें तीन ऑर्बिटल होंगे। Yes. कौन से होंगे? 3px बराबर ना? 3p. 3px, 3py, 3py, 3pz। 3pz. ठीक है, हाँ ठीक है। अगला थर्ड शेल में होगा डी सब शेल। उसके बारे में हम लोग 2 मिनट के बाद बात करेंगे। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल है वो देखेंगे हम लोग। पहले वो कंप्लीट करते हैं। तो क्लास लेट अस गो इन 3s ऑर्बिटल। पहले 3s ऑर्बिटल की बात करते हैं। 3s ऑर्बिटल कैसे होता है? लेट अस कवर 3s ऑर्बिटल। मुझे लगता है आप अभी गेस कर पाओगे 3s ऑर्बिटल कैसे होता है। तो लेट अस गेस। तो क्लास अगर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, सॉरी ये कलर नहीं लेते हम लोग, ये मैं स्फीयर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, स्फीयर राइट, और मैं उससे भी एक बड़ा स्फीयर ड्रॉ करता हूँ। तो दो स्फीयर के बीच में जो गैप क्रिएट होगा राइट, उसका शेप क्या होगा? स्फेरिकल ना? Spherical. हाँ तो क्लास उस स्फेरिकल रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2. 2। तो क्लास वो इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल शेप रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लास ये जितने भी डॉट ड्रॉ कर रहा हूँ क्या बता रहे हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकते हैं राइट, उन डॉटेड एरिया में Yes. पूरा रीजन उनके लिए Yes. अवेलेबल है। यस। कैन बी एनीवेयर। तो क्लास क्या उस रीजन को हम नाम देंगे? उसको नाम देंगे विच ऑर्बिटल? 3s. उसको नाम देंगे 3s Yes. Define 3s orbital. It is a 3-dimensional region around the Nucleus. Yes. Yes. nucleus. Okay, or better, it is a 3-dimensional spherical region around nucleus, right? Where there is a Yes. maximum, where there is a maximum probability of finding 2 electrons. Electron. Electron. So I call it as a 3s orbital. Agree? यस। Yes. And class 2s and 3s के बीच में एक गैप दिख रहा है आपको? Yes. यस। क्लास उस Yes. गैप में क्या होगा? Spherical node. Spherical node होगा। वेरी गुड। तो वहाँ पे Spherical इलेक्ट्रॉन node. नहीं होंगे राइट? तो वी कॉल दैट रीजन एज व्हाट? Spherical node. Spherical node. वेरी गुड, क्योंकि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। नहीं होंगे। Good. So we call this as spherical node. Between 1s and 2s is one spherical node, and between 2s and 2s and 3s, one 3s. spherical One node. spherical node. one spherical node. ठीक है क्लास, अभी मैं आपको आगे वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बताऊं चलेगा? आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट बताऊंगा क्योंकि आपको फिर कंसेप्ट कम क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज ना मैं टेक्स्ट बुक कैसे बताऊंगा तो इजी लगेगा आपको। ठीक है, थोड़ा शायद डिफिकल्ट लगेगा। आई डोंट नो आपको डिफिकल्ट लगेगा नहीं, मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो क्लास ये हो गया आपका 3s ऑर्बिटल राइट। यस। आपका 3s ऑर्बिटल हो गया। हाँ थर्ड शेल में और कौन सा सबशेल है? थर्ड P. सबशेल है। हाँ तो क्लास हमने ये ड्रॉ किया था, देखो क्लास हमने ड्रॉ किया था ये 2px है राइट। दिख रहा है आपको 2px दिख रहा है? यस। तो क्लास 3px कैसा होता है आपको दिखाता हूँ मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड 3px। 3 वाले। क्लास ये अपने कोई भी बुक में नहीं है। इफ यू डोंट लाइक दिस फॉरगेट इट, कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आपको ये नहीं समझेगा। तो क्लास इसका नाम क्या है? 2px. 2px। तो क्लास मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो तो अब इस रीजन को मैं शेड करने वाला हूँ। टेल मी, जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ व्हाट इज शेप ऑफ दैट रीजन? स्फेरिकल लगा आपको? ओवल, एलिप्टिकल। Oval. स्फेरिकल या डंबल है? डंबल। एक छोटा डंबल और उसके बाहर बड़ा डंबल, और डंबल जो के बीच का शेप क्या होगा? ठीक है ना, ये शेप डंबल है राइट। Yes. तो क्लास इस रीजन में जो मैं पिंक ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 2. 2 इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे हो सकते हैं? कहाँ भी हो सकता है। किधर भी हो सकते हैं। जितना एरिया में शेड किया है, जितना मैंने वॉल्यूम शेड किया है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन किधर भी हो सकते हैं, उनकी मर्जी। इलेक्ट्रॉन कैन बी एनीवेयर इन दैट रीजन राइट। Yes. So what about बीच वाला एरिया, वाला रीजन? What about बीच वाला रीजन? प्लस केस मारो ये रीजन। Spherical node. Spherical node. Spherical node. वेरी गुड, स्फेरिकल नोड ना। Yes. Yes. मतलब क्या उस रीजन में इलेक्ट्रॉन
नहीं होगा। नहीं होंगे। हाँ क्लास जो हमने ब्लू कलर से शेड किया है उस ऑर्बिटल का नाम क्या है? 3 px 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 राइट। yes सिमिलरली हमारे पास क्या होगा? 3p y। y एक मिनट करते हैं, करने की जरूरत है एक्चुअली, ये समझ रहा है? ठीक है कर देते हैं, चलो समझ रहा है। ठीक है। हम लोग फिर कर देते हैं, एक y करते हैं, फिर z नहीं किया तो भी चलेगा हम लोगों के लिए। तो क्लास ये डम्बल we take the phone just a second. And one more, right? yes Yes. क्लास बिलीव में मैं जो बता रहा हूँ आपको, इट इज नॉट इन एनी टेक्स्ट बुक, कोई भी बुक ऑफ रेफरेंस बुक में भी नहीं है, बट दिस इज अ रियल डायग्राम ऑफ 3p ऑर्बिटल 3px प्लस। तो ये जो हम लोग 3py कौन से कलर से शेड कर रहे हैं? green ग्रीन कलर से। Neon. प्लस ये ग्रीन कलर आपको क्या दिखा रहा है? 3py हाँ तो प्लस क्या होगा यहाँ पे? तो प्लस ये कौन सा रीजन है? 3p 3py y 3py बराबर है? Yes. तो भी रोकले है so this is 3py right? हाँ class what is in between? spherical node हाँ plus and so on right? Yes. yes तो class आपके पास तीन ऑर्बिटल है, कौन सा है? 3px 3py and y 3pz pz तो क्लास ये इसका नाम है 3p y हाँ। और क्लास छोड़ दे कर दे, इतना तो z भी कर देते हैं, क्या 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है and if you share it तो क्लास दिस रीजन, ठीक है दिख रहा है पेन पे दूसरा लोग कर रहे हैं, व्हाट दिस रीजन इज 3pz3pz वेरी गुड। क्लास सब लोग समझ रहा है या कुछ लोग को नहीं समझ रहा? प्लीज वो भी बोलो जिनको नहीं समझ रहा। आई कैन एक्सप्लेन डिफरेंट वे। समझ रहा है। मेरे तो अच्छी बात है। समझ रहा है। तो क्लास दिस कॉल्ड 3p z z okay class in between what is that? spherical node spherical node Spherical node, good. So we have three orbitals, right? 3px 3py and 3pz. Okay, now let us go for the D subset. okay, let us go in D subset. अरे ये क्या हुआ? Three p z, right? Okay, 3px 3py and 3p z Z. z. Okay, class now go in D subshell. तो class हमने देखा कि थर्ड शेल में S सबशेल में 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है 3s ऑर्बिटल में। हाँ प्लस 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 electron 2 2 electron इलेक्ट्रॉन। इस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 electrons electron what is capacity of third shell? 18 electrons, right? Yes. yes 18 में से कितने इलेक्ट्रॉन बोल के हो गए अपने? 8 8 तो कितने बाकी अपने पास अभी? 10 10 तो क्लास इज 10 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डी सबशेल। तो क्लास डी सबशेल हैज 5 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। 5. तो क्लास उनके नाम बता दो आपको मैं। तो क्लास ये ऑलमोस्ट बहुत लोग इसको रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, बहुत ज्यादा लोग। एक है
डी एक्स वाई, ये तो सब लोग बराबर बोलते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, आई गोइंग टू एक्सप्लेन, डी एक्स जेड, डी प्लस सब लोग बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस इट इज नॉट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इट इज डी एक्स टू वाई टू, क्या बोलते हैं इसको, डी x2 y2 वो लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जैसा, पर वो डी एक्स टू वाई टू, और लास्ट वाला है डी जेड टू, डोंट से डी जेड स्क्वायर, इट इज नॉट रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं। तो डी ऑर्बिटल कैसे होते हैं, तो क्लास में था ये क्या है, बलून, राइट, दो बलून जॉइन किए तो डंबल डम्बल शेप और क्लास चार बलून जॉइन किए तो फ्लावर फ्लावर। हाँ क्लास, वेरी गुड। तो क्लास हम उसको फ्लावर बोलना चाहिए था एक्चुअली, पर उसको डबल डंबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डबल डंबल, तो इसलिए डबल डंबल। एवरीवन एग्री? Yes. ओके, तो क्लास डबल डंबल है। हाँ, तो क्लास ये कैसे होता है देखते हैं हम लोग, डबल डंबल। तो क्लास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई वाई एक्सिस है। तो एक्स एंड वाई एक्सिस, इट्स एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई वाई एक्सिस। हाँ, प्लस अभी एक्स एंड वाई एक्सिस में, ओके, so between x and y axis, suppose if I draw a balloon, देखिए एंगल 45 डिग्री, आपको समझ रहा है 45 डिग्री एंगल। यस I draw one more balloon, तो बस वो बलून x एक्सिस पे y एक्सिस पे, वो बलून दोनों पे भी नहीं है, ना x पे ना y पे, वो दोनों के बीच में है। अरे नहीं, z पे भी नहीं है प्लस, z पे भी नहीं, z तो आगे पीछे है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो z पे भी नहीं। प्लस देखो x एक्सिस, ये x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, राइट। प्लस z एक्सिस ऐसा नहीं, यहाँ पे नहीं होता, z एक्सिस आगे पीछे होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड 3 डायमेंशन, नहीं समझ आपको? प्लस समझो, इफ आई से दिस इज, एक काम करो, x एक्सिस लो, y एक्सिस लो, एक बलून लो और बलून यहाँ पे रख दो। तो आपने कहाँ पे रखा बलून को, x एंड y एक्सिस के बीच में। कितना बीच एंगल, में। कितना एंगल बना उसने, 45 डिग्री का एंगल बना। 45 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लस z एक्सिस ना, मेरा जो टैबलेट है ना, उसके आधा उसके सामने रहेगा, आधा उसके पीछे रहेगा, समझा? अगर ये ओरिजिनल यस हाँ, तो आप दिखाते ऐसा हो, पर वो वहाँ पे नहीं होता, वो दिखाने का तरीका है। पर मैंने जहाँ पे दिखा है पर्पल लाइन, वहाँ पे क्या वो नहीं, वो लाइन का मतलब क्या है, उसका आधा पार्ट आगे पीछे, मेरे टैब के प्लेन के आगे, आधा पार्ट उसके पीछे है। पीछे। हाँ, तो वो z एक्सिस होता है, तो हमने z एक्सिस नहीं दिखाया। ठीक है, तो x एक्सिस एंड y एक्सिस। हाँ, तो बस एक बलून कहाँ पे, x एंड y एक्सिस पे, एक्स एंड वाई के बीच बीच में दूसरा भी x एंड y एक्सिस के बीच में में तीसरा भी बीच में, राइट। यस सॉरी, थोड़ा छोटा ही हो रहा है बार-बार। और पांचवा भी, सॉरी पांचवा नहीं, चार ही है, और चौथा ही बीच में, ठीक है। यस प्लस अब ये चार बलून आपके पास, प्लस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम? हेलो हाँ हाँ सर बोलिए। हेलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम, बोलिए आप। स्टूडेंट, इसमें इस चार बलून में इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं मैक्सिमम? 8 कितने? 8 आंसर इज 2। 2 क्लास में 2 बोल रहा हूँ मैं, इसका रीजन बताता हूँ। क्लास मैं रहता हूँ ना, मेरा घर 2 BHK है और मेरा एक घर फ्रेंड है, उसका घर 4 BHK, राइट। तो क्लास क्या वो अपने घर में मुझे रहने देगा क्या? नहीं ना। तो ये 4 बलून है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का घर है, वो अपनी मर्जी से वो 4 BHK में आराम से किधर भी रह सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकते हैं? दे कैन प्रेजेंट एनीवेयर, उनकी मर्जी, उनको कहाँ पे, उनका घर है पूरा 4 BHK, ठीक है। तो दे कैन स्टे एनीवेयर, उनको जहाँ पे लगता है वहाँ पे रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लास मैं जहाँ पे भी डॉट दिखा रहा हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, मैं जहाँ पे भी डॉट दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन उस रीजन में किधर भी हो सकता है। पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन।
तो क्लास ये जो ऑर्बिटल है इसका शेप क्या है? डबल डम्बल, राइट? Yes. बिटवीन Y and x Z. and y axis, x and y axis, ठीक है? y axis बोला तो भी चलेगा Sir? बेटा, x बिटवीन, हाँ बोलो एक बोलो। बलून में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों बलून में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन? चार, वो तुम्हारे पास 4 बलून है ना? हाँ, देख तेरा घर 4 BHK, तू अपने घर में किधर जा सकता है? कहीं पर भी। किधर भी? सिर्फ तेरे घर में 2 ही लोग रहे, तू और तेरी वाइफ, हम्म, तो तुम लोग कहाँ पे रह सकते हो घर में? कहीं भी रह सकते। कहीं कहीं भी रह सकते हैं। तो तेरा घर है 4 BHK, तो 4 उनके लिए चारों रीजन, कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? सिर्फ पर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझा आपको? हाँ, तो एनीवेयर 2 इलेक्ट्रॉन कैन स्टे एनीवेयर इन दैट रीजन, जो मैंने शेड यहाँ पे दिखा। शायद तो मैं इसको ये करता हूँ, चलो ये दिख रहा है आपको, अभी मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हाईलाइटेड Yes. रीजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रह सकते हैं? Anyway. highlighted region. और कितने इलेक्ट्रॉन? 2. 2 electrons. So 2 electron can remain anywhere in that highlighted region, right? Yes. So class we call it orbital as what? Which orbital? DXY. 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 हाँ, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता किसी को, anybody can define DXY orbital? कोई डिफाइन करेगा DXY orbital? डबल डम्बल। वेरी गुड, बोलो बोलो, जोर से बोलो, बराबर बोल रहे हो तुम। डबल डम्बल The double dumbbell shape region region around the nucleus where the maximum probability of finding electrons. कितने electrons? 2 Electrons. Very good. So we call it orbital as what? DY. DXY. ठीक है class, ठीक है। हाँ क्लास दूसरा अभी हम लोग लेते हैं ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। क्लास अब मुझे क्वेश्चन पूछेगा सर आपने अभी तो इसको x एक्सिस बोला, अभी z कैसे बोल रहे हो? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन दिस? अभी मैंने इसको x बोला था, अभी इसको z बोल रहा हूँ मैं, कैसे चलेगा? एक्सिस आर क्योंकि परपेंडिकुलर। YZ 90 degree. परपेंडिकुलर। हाँ परपेंडिकुलर का मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। क्लास आप एक्सिस को अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो? एक्सिस को एडजस्ट कर सकते हैं। घुमा सकते हो, एडजस्ट से अच्छा घुमा सकते हो। तो क्लास फॉर एग्जांपल मैं ट्राई कर रहा हूँ, घुमा सकता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। क्लास ये ऑर्बिट देखो, मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा। Yes. हाँ तो क्लास मैं इसको किधर भी घुमाऊं, पर एक बार मैंने डिफाइन किया कौन सा है कौन सा z, तो हमेशा क्या रहने वाला है? वो y एंड z ही रहने वाला Z है। रहने वाला है। एक बार मैंने y को डिफाइन किया, एक बार मैं z को डिफाइन किया, फिर मेरी मर्जी, उनको मैं स्पेस में मेरी मर्जी से चाहूँ वैसे स्पेस कैसे भी क्या कर सकता हूँ? घुमा सकते हैं। घुमा सकता हूँ। दैट इज मैथमेटिक्स। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ मैं क्या बोला आपको। Yes. Yes. तो z एक्सिस y एक्सिस है क्लास। तो कितने ऑर्बिटल? एक ही। ओके कितने बलून? 4। 4 कहाँ पे? बिटवीन कौन सा एक्सिस? y एंड Y and Z. Z एक्सिस। उन 4 बलून में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 कहाँ पे? एनीवेयर। Right? हाँ anywhere in that double dumbbell shape region. Class, what should be the name of that region? DYX. YZ। DYZ, right? DYZ, very good. YZ. तो क्लास मैं इसको शेयर करता हूँ रीजन को। तो क्लास इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एनीवेयर इन दैट रीजन। तो क्लास ये ऑर्बिटल ड्रॉ किया DXY, ये ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर है एक्सिस के बीच में? बीच में। between. पहला वाला कहाँ पे था? एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, राइट? Yes. दूसरा वाला कहाँ पे? बीच में। वाई एंड Z. ठीक है। क्लास तीसरा वाला करते हैं। ओके DXY में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम? 2 प्रोसीड। हाँ लेट अस प्रोसीड। क्लास तीसरा ड्रॉ करता हूँ, फिर हम लोग साथ में दिखाएंगे तीनों को। तो क्लास एक तो क्लास ये एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। ठीक है आपका एक्स वाई हो गया, आपका एक्स वाई हो गया, आपका वाई जेड हो गया। तो क्या बचा अभी? एक्स जेड। क्लास एक्स एंड जेड एक्सिस। ओके तो क्लास 4 बलून बिटवीन Z and X axis. जेड एंड एक्स एक्सिस, राइट? कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम?
Two electrons. कहाँ पे? Anywhere in that Anywhere in the Double double. double double, right? Yeah. So class, what should be name? DYZ. XZ. XZ, perfect. XZ, DXZ, ठीक है? Plus, तो दो इलेक्ट्रॉन are anywhere in that region, DXZ, ठीक है? Yes. Okay. Class, अभी next exam लो. ये DX का हो गया, DY हो गया. What is the DXZ orbital? 4 मिनट बाद कितने ऑर्बिटल से DXZ में? So कितने इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम? 2 इलेक्ट्रॉन. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, right? 2 electrons. Class, now this is DX2Y. just a second, huh? Now this is x-axis and this is y-axis. So I'm drawing now 4 balloons. Now you are going to tell me कहाँ पे है वो? बस कहाँ पे है ये 4 बलून? On X and On Y X. axis and Y axis. On axis, right? Yes. Yes. On which axis? X and Y. Y axis. So class, we call them as D. X2 minus Y2. class आपको बोलना है तो बोलो x square minus y square, but that is scientifically wrong. It is called D. देखो कोई लिखते हो आपको पूछने वाला नहीं, oral question कि इसका नाम क्या है? But फिर भी for scientific reason you should know that this is not x2 minus y2, it is dx square. So it is not x square minus y square, it is dx2 y2. Class, कितने electrons? 2. Electrons. 2 electrons. Where? Anywhere. Double region. In double double. In that double double region, right? Anywhere in the double region. We call that as what? dx2 y2. X2 minus Y2. ठीक है, चलो x2 minus y2 dx2 minus y नहीं बोलने, dx2 y2 बोलने का, माइनस भी नहीं बोलने का, ठीक है? Yes. dx2 y2, नो प्रॉब्लम. चलो आप बोल रहे हो, तो दिस इज dx2 y2. हाँ क्लास, अभी लास्ट वाला बचा है, उसकी बात करते हैं हम लोग. क्लास, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ड्रॉ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स. तो ये हमने शेप ड्रॉ किए, वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द शेप. ओके क्लास, अभी लास्ट वाला बचा है. तो क्लास, दिस इज z एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. क्लास, ये ओरिजिन है. प्लस इस ऑर्बिटल का शेप डबल डम्बल नहीं होता, ये z एक्सिस है. जो हम लोग ड्रॉ कर इसका शेप डबल डम्बल नहीं है. हाँ, तो क्लास व्हाट यू कॉल द शेप एज? डंबल. ठीक है, डंबल. हाँ, और क्लास, इस डंबल के अराउंड एक रिंग होगा, जैसे सैटर्न में होता है, राइट? या फिर सैटर्न छोड़ दो, मेदू बड़ा मानो को ना, Yes. थोड़ा जैसा रिंग. तो क्लास, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन आइदर उस मेदू बड़ा में है, या तो Dumbbell. डंबल में है. ठीक है, Dumbbell. इलेक्ट्रॉन्स Yes. either in that donut, you can say donut, you can say medu vada, you can say whatever, but ये shape समझ लो. तो इलेक्ट्रॉन can be present in that region, or electron or can be present in the Double. other color for the dumbbell. Electron can be in dumbbell or in that medu vada. हाँ, तो class, name of this orbital is DZ square. DZ2. ठीक है, चलो DZ2. तो class, D section में कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल? 2 electrons. 10. D section में 5 ऑर्बिटल हो गए. Yes. इसका नाम है DZ2 है, and that contain maximum 2 electron. D section में टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए, DXY, Yeah. DYZ and DXZ. Excellent. हाँ क्लास, अभी एक क्वेश्चन MCQ का. Out of 5 d orbitals, how are between the axis? How many are between the axis out of 5? 2. 3. 3 are between the axis. कौन से?
एक क्वेश्चन आ चुका है dx dx y dy z dy xy. dxz dxy dYz and dxz, they are between the axis, and which are on the axis or along the axis? 2 2 dx2 y2 x2 y2 dz. dz2 क्लास आपके टोटल हो गए, 5 आपके टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, 5 Yes. 5 orbitals contain 10 electrons. yeah ठीक है, तो क्लास अभी हमने बोला कि Yes. थर्ड शेल में कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन, कितने 18 हो गए। Yes. Yes. एक्स वाई में 2, वाई जेड में 2, एक्स जेड में 2, एक्स टू वाई टू में 2 और डी जेड टू में 2, तो क्लास 2 + 6 + 10 टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 18. इन थर्ड शेल। तो क्लास एक आपका 2 मिनट में और लूंगा, दोनों एक ही मिनट लेता हूँ। अगर फोर्थ शेल में जाओगे, कौन से शेल में? 4 Fourth. तो क्लास फोर्थ शेल में बोलो आप क्या होगा? एस सब शेल, राइट? Yes. It has only one orbital. Which orbital? S orbital. Yes, orbital. उसका नाम देंगे हम लोग 4s, right? 4s. Which contain 2 electrons. बराबर है? Yes. We have p subshell. The p subshell has 4 4p. y and pz. इसका नाम 4p है, इसका नाम 4p है, इसका नाम 4pz, right? It contain 2. Total 6 electrons. 6 Right? Then contain d Yes. subshell. dxy, dxy dyz dxz dx2 y2 z square. dz2, right? Each contain 2 क्लास कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 18 हो गए। 18 हो गए ना? हाँ हाँ। क्लास आपको में फोर्थ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फोर्थ शेल में 14 32 होते हैं। 32 तो अभी कितने बचे हैं? 18। 32 में से 18 निकाल दो, 18 14 बचे। 14 ठीक है। तो क्लास वो 14 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 4 F प्रेजेंट विच ऑर्बिटल? f F orbital. हाँ क्लास शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इज नॉट इंक्लूडेड एनी एग्जाम, ना जेडब्ल्यू में, ना नीट में, ना कोई। तो एफ ऑर्बिटल का शेप बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। तो एफ सबशेल हैज 7 एफ ऑर्बिटल्स। अपना हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 टोटल 14 हो गए, राइट? 2 electrons. yes ठीक है। तो क्लास इज अबाउट द फोर्थ शेल। तो फोर्थ शेल में एस सबशेल में एस ऑर्बिटल, पी सबशेल में पी वाई पी जेड, डी सबशेल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू। और एफ सबशेल में हम लोग बोलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन बच्चे कितने अपने आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 14 तो क्लास 14 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आपको कितना ऑर्बिटल चाहिए? 7 तो इतना बोलते हैं कि एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। The shape is very complicated. It is not possible to show on the paper. So it is said the shape of orbital is 3-dimensional, complicated. उनका shape बोलते हैं हम लोग क्या? 3-dimensional, complicated. उसका और एक नाम है, उसका और एक famous नाम है diffuse shape. क्या नाम है उसको? diffused shape. ठीक है। The class we'll stop now. If you want to ask any question, please ask. आपको कोई डाउट है मुझे पूछ लो before we stop.